Hello dear students, today we are solving a very interesting geometry problem based on chord, radius and tangent properties. So let us begin. Question number 4. P and PB are tangent drawn to a circle of center O from an external point P. Chord AB makes an angle of 30 degree with the radius at the point of contact. If length of the chord is 6 centimeter, find the length of the tangent PA and the length of the radius OA. यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल पेपर 2023 स्टैंडर्ड का है. So this is the figure. So PA and PB are tangents drawn from this external point P, and this is the circle with center O. This is the chord AB makes an angle 30 degree with the radius OA at the point of contact. If the length of the chord is 6 centimeter, length of this chord is 6 centimeter. Now we have to find the length of tangent PA and the length of the radius OA. So solution, given a chord AB is equal to 6 centimeter, PA and PB are tangent from external point P. Chord AB makes an angle of 30 degree with the radius at the point of contact, that is angle OAB. OAB, this angle, and angle OBA, this angle is equal to 30 degree. So now step 1, draw OQ perpendicular to AB. We draw this OQ perpendicular to this chord AB. So to find length of radius OA. So AQ is equal to 6/2 is equal to 3 centimeter. AQ कितने के बराबर है? Just half of this AB. Why? Because perpendicular from center to a chord bisect the chord. Now in right angle triangle OQA, इसमें क्या है? cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AQ अपॉन OA. यहाँ देखिए cos 30 डिग्री ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. So this is equal to AQ upon OA is equal to, this implies cos 30 की वैल्यू रख दी √3/2 is equal to AQ is equal to 3 सेंटीमीटर, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, हाफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड अपॉन OA का रेडियस. So this implies OA is equal to 2√3 सेंटीमीटर. इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 सेंटीमीटर रेडियस OA हो गई सर्किल की. नाउ स्टेप 2, टू फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट PA. सो PA की लेंथ को हम ज्ञात करने के लिए फर्स्ट वी विल प्रूव दिस ट्राइंगल ABP एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर देंगे तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, length of this tangent, length of this tangent are equal. So how we will prove this triangle is an equilateral triangle? So see, to find length of tangent PA, OA is perpendicular to PA. OA is perpendicular to PA. Why? Because tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Therefore, this angle OAP is equal to 90 degree and this angle is 30 degree. Then this remaining angle, this much, BAP is equal to 60 degree. वही मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देखिए. So angle OAP is equal to 90 degree
एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी माइनस एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री. Similarly, we can prove this angle ABP. This angle is equal to 60 degree. Now we will find out this angle is equal to 60 degree. So how we will find out? So in triangle AOB, AOB, आप इसमें देखिए क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कितना बचेगा 120 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो गया. अब आप देखिए कि ये जो है क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. तो हमको ये ज्ञात है 90 डिग्री, ये भी ज्ञात है 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, तो इस एंगल को हम ज्ञात कर सकते हैं. तो ये एंगल, सो सिमिलरली एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 60 डिग्री. इन ट्राइंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, in triangle AOB, angle AOB is equal to 180 degree minus angle OAB minus angle OBA, so is equal to 180 degree minus 30 degree minus 30 degree is equal to 120 degree. In quadrilateral OABP, angle ABP is equal to 360 degree minus angle PBO minus angle AOB minus angle OAP. ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल में 360 में से ये एंगल और ये एंगल मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो गया आपका 360 माइनस 90 माइनस 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABP आर इक्वल एंड इक्वल टू 60 डिग्री. देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए बी, और ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए ऑल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. सो आंसर, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर. अच्छा, इसका टेंजेंट का लेंथ ज्ञात करने के लिए एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो मैं आपको जो है अब ये दिखाता हूँ. तो दिस इज द अल्टरनेट मेथड टू फाइंड लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए. सो we have found we have found length of radius 2√3 सेंटीमीटर, अभी हमने निकाला था. we have drawn OQ परपेंडिकुलर टू AB chord, और OQ AB के परपेंडिकुलर भी हमने ड्रॉ किया था. तो देयरफॉर एंगल AOQ दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BOQ इस एंगल के, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा. क्यों होगा? बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन द chord ऑफ ए सर्किल, we have found length of radius is equal to 2√3 centimeter. We have drawn OQ perpendicular to AB chord. Angle AOQ is equal to angle BOQ. AOQ is equal to BOQ. ये एंगल आपस में बराबर होंगे. तो एंगल AOQ angle AOQ is equal to angle BOQ because perpendicular from center on the chord of a circle bisect the angle AOB. इन ट्राइंगल AQO में देखिए AQO, ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में क्या है,
90 डिग्री माइनस एंगल ओ ए क्यू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये बचा 60 डिग्री। अब नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी में देखिए, ओ ए पी ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में क्या है, ये जो है 60, ये 90। तो नाउ इन ट्राइंगल ओ ए पी अब हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ओ एस अपॉन ए एस इज इक्वल टू पी ए अपॉन ओ ए। इसमें tan 60 लगाया क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है। तो अपोजिट साइड कौन सी है, ये ए क्यू, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ओ क्यू, ये है। तो वही हमने इसमें ओ एस अपॉन ए एस इज इक्वल टू पी ए अपॉन ओ ए। सो दिस इम्प्लाइज tan 60 की वैल्यू रख दी, √3/1 इज इक्वल टू अब पी ए अपॉन ओ ए रेडियस है तो वो 2√3 के बराबर कैलकुलेट किया है। सो दिस इम्प्लाइज पी ए इज इक्वल टू 2 × 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। पी ए क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सो आंसर लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। So in this video we have an important circle geometry problem based on chord radius and tangent properties. So we have solved the question very easily step by step. Thanks for watching.